Welcome to English classes. My name is Rajiv. Uh, Here in English classes, my main intention is to teach you some English grammar and composition so that you can read, write, and speak correct English. In this series of lectures, the first I will start with is tense. Alright, because tense is important. Tense is important not only for competitive exams, because you may get a lot of questions on tense. For example, they may give you some sentences and in that you have to correct the errors. So this is one part. So that is for competitive exams. This one is required. And number two, in day-to-day life also, this one is required because this is the only thing through which you can learn how to write correct English and how to speak correct English. So for speaking and writing correct English, this tense is very important. Alright, that's why I have started my first topic as tense. Now let us start what tense is. Tense, actually, this word tense has come from a Latin word that is tempus. Alright, so this Latin word tempus. And this tempus, it means time. Alright, now time. Now what time? This time suggests that whether an action happened in the past, in the present, or in future. So if an action happened in the past, that can come under the category of past tense. If an action happened in the present, that will come under present tense. And if an action will happen in future, that will come under future tense. So the thing is that if it happens in the past, alright, okay, so then this is in the past tense. If something happens in the present, so that will come under the present tense. And if something will happen in future, so definitely that will go into future tense. So ये जो चीज है तुम्हारा present tense, past tense, future tense, ठीक है? जो कोई चीज past में हुआ है तो past tense में आ जाएगा, कोई present में हुआ है तो present tense में होगा, और अगर कोई फ्यूचर में होने वाला है तो फ्यूचर टेंस में आएगा. ये तो बात सीधी है ना. तो जो पास्ट में हुआ, लेकिन ये जैसे पास्ट टेंस का अगर एक सेंटेंस देखते हैं तो I ate, ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस का I eat and the third one is I will or I shall eat. चलो ठीक है. I ate, I eat, I shall eat. चलो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस. लेकिन ये जो एक सेंटेंस है आई एट, आई ड्रैंक, आई प्लेड, जो भी हुआ, ये इससे मैटर क्लियर नहीं होता है. ये बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो हम लोग को अनडिस्कस्ड है और जो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो ये केवल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को कैटेगराइज कर दिया, ठीक है. आई एट, आई प्लेड, आई ड्रैंक, व्हाटएवर इट मे बी, और आई ईट, आई स्लीप, I drink, I read, hardly matters, okay? This only says that something happened in the past, is happening in the present, or will happen in future. But it doesn't make the sense clear, because it doesn't show that, number one, what doesn't show? This is incomplete. These divisions, past, present, and future, are insufficient, and they are not able to give you the correct message that the actions. One, the completion of any action. Completion of an action. तो मतलब ये नहीं बताता है कि पास्ट में ठीक है आई एट मैंने खा लिया, कंप्लीशन हो गया या अभी चल ही रहा है मामला, ठीक है. ये मामला भी क्लियर नहीं हो रहा है. कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इज नॉट क्लियर इन दिस वन. नंबर वन. नंबर टू,
अभी की स्थिति क्या है उसकी, स्टेटस ऑफ एन एक्शन, ठीक है, अभी की स्थिति क्या है वो हम जानना चाहते हैं, तो वो भी हमको क्लियर नहीं हो रहा, अभी का स्टेटस ही पता नहीं चल पा रहा है। और तीसरा जो है वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब कि कौन सा एक्शन पहले हुआ, कौन सा एक्शन बाद में हुआ, है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हमने जो देखा कि ये जो टेंस हम देख रहे हैं, टेंस पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, सही है, पास्ट में कोई काम हुआ तो पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, फ्यूचर में हो गया तो फ्यूचर टेंस हो गया। तो सिंपल डिवीजन ये क्लियर नहीं है हमारे आइडियाज को और हमारे समझने के लिए या समझाने के लिए, हमारे मैसेज को क्लियर हम नहीं दे पा सकते हैं इसके कारण। बस ये अगर 3 डिवीजन मान के चले तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो हमको फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब डिवीजन ये इनकम्प्लीट इसलिए है कि ये नहीं बताता है कि कोई एक्शन पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ये भी नहीं बताता है कि स्टेटस क्या है किसी एक्शन का, और ये भी नहीं बताता है कि सीक्वेंस क्या है इवेंट का, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो हमारा ये जो चीज है टेंस का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आधा अधूरा है। तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि इसको फर्दर सब डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम फर्दर सब डिवाइड करेंगे तभी हमारा मैसेज क्लियर हो पाएगा। अब इसका फर्दर सब डिवीजन होगा तो वो क्या क्या हो सकता है वो तुम देख लो। फर्दर सब डिवीजन होगा तो फर्दर सब डिवीजन, सो पास्ट, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, हाँ, सिंपल पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर डजंट मेक एनी सेंस unless and until they are further subdivided into number 1 indefinite, right, then continuous, then perfect, and fourth one is perfect continuous. कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब क्या हो गया कि ये हमारे पास में फर्दर शार्प डिवीजन हो गया, इंडेफिनिट हो गया, हाँ, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये इंडेफिनिट को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट को सिंपल भी बोल देते हैं कुछ कभी कभी, है ना। और ये जो तुम्हारा कंटिन्यूअस है इसको प्रोग्रेसिव ही बोल देते हैं क्योंकि ये प्रोग्रेस करता रहता है, चलता रहता है ना। तो परफेक्ट ही हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस तुम्हारा हो गया। तो ये जो हमारे फर्दर सब डिवीजन हो गए ये हर के हो गए, जैसे पास्ट के हो गए तो पास्ट में भी ये सारे के सारे आ जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, हाँ, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट में आके आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड फिर फाइनली क्या हो जाएगा फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सारा का सारा तुमको हम मामला और क्लियर करेंगे जबकि हम एक टेबुलर फॉर्म में समझाएंगे। जब टेबुलर फॉर्म में समझाएंगे तो मामला और पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब खैर वो तो बात की बात है, पहले अभी हमको ये देखना है कि ये इंडेफिनिट सिंपल जो है ये करता क्या है। ये जो इंडेफिनिट और सिंपल है ये डजंट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द एक्शन, ठीक है। ये जो है सो ये नहीं बताता है, डजंट से एनीथिंग अबाउट द कंप्लीशन, हाँ, और डजंट से एनीथिंग, doesn't say about the completion of an action, about the completion of an action। ये नहीं बताता है कि वो एक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि आई टीच, ठीक है, या आई टॉट, जो हमने तुमको पूरे सेंटेंसेस दिए थे, आई टीच, आई टॉट, आई शैल टीच, मतलब ये नहीं बताता कि सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है, आई टीच फिनिश्ड, हाँ। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ ये नहीं बताता है, बड़ी बात, मतलब ये भी देखो कंप्लीट नहीं है। अब कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव में क्या बोलता है, या प्रोग्रेसिव में क्या बोलता है, एक्शन कंटिन्यूस, है ना, एक्शन कंटिन्यूस। इससे ज्यादा ये नहीं बताता है, ये केवल यही बताता है कि एक्शन कंटिन्यू, काम जारी है, काम चल रहा है, एक्शन कंटिन्यू कर रहा है, इसके आगे ये भी नहीं बताता है, ठीक है। वैसे ही परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट में क्या बताता है, एक्शन इज ओवर एट द टाइम
ऑफ डिस्कशन, है ना, ये यही बताता है। एक्शन इज ओवर एट द टाइम ऑफ डिस्कशन, मतलब जब हम बात कर रहे हैं उस समय ये काम फिनिश हो गया। आई हैव टेकन माई लंच, आई हैव टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच ले लिया, मतलब अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हमने इस समय तक हमने अपना खाना खा लिया है, अपना लंच ले लिया है। सो अगर ये ऐसा बात बताना है तो देन आई विल जस्ट राइट और स्पीक इन दिस परफेक्ट टेंस, and the next one will be perfect continuous tense. Now perfect continuous what? This one is an action started in the past and is still continuing. Action is started in the past and is still continuing. जब ऐसे चीज को दे रहे हैं तो हम ये करते हैं। तो अब बात यह है कि हमारा कोई भी कंप्लीट नहीं है अपने आप में, ऐसा नहीं कि कोई एक मास्टरपीस है, मास्टर की टाइप की कोई चीज है कि एक सेंटेंस हम बना लिया कहीं भी यूज कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा क्या, अभी तक हमने देखा क्या कि हमारे पास टेंस में तीन टेंसेस हैं, मेजर टेंसेस, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और वो हर तीन के जो तीनों हैं उनके हर के चार अलग अलग पार्ट हैं। एक है तुम्हारा इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमारे तीन जो टेंस हुए मेजर टेंसेस, है ना, और ये जो चार सब डिवीजन हो गए, ये हमारे टोटल 12 स्ट्रक्चर्स हमको ये देते हैं। ये 12 स्ट्रक्चर्स देते हैं। तो ये जो 12 स्ट्रक्चर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए है, मतलब जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है आप क्या मैसेज दे रहे हैं, उसके आधार पर उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो वैसे करने से आपको क्या हो जाएगा कि आप जो ज्यादा एक्यूरेट और अपने मैसेज को ज्यादा क्लियरली दे पाएंगे। तो ऐसे हमारे पास में 12 सेंटेंसेस अभी बनने बाकी हैं। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे कि आपको पूरा का पूरा टेंस का हम आपको स्ट्रक्चर देंगे। उस स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि एक टेंस हर का एक फिक्स पैटर्न है, कौन सा टेंस का कैसे लिखा जाएगा ना, स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो इतना तक मैं अभी के लिए इतना ही हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड नेक्स्ट क्लास वी विल इमीडिएटली अपलोड इट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।